So, the difference between conductors and insulators helps you to differentiate between the idea of metals and non-metals. That actually, what is the difference, or like what is the science behind insulator and conductors is. So, concept is very easy. Both have electrons, right? But in both categories, the formation or the movement of electrons are completely different. In conductors, electrons are free to move, right? But in insulators, electrons can Sir, vibrate about their fixed point. Yes. Noman is waiting room. Okay. So, this is the difference between the conductors and insulators. Now, it is easy to discuss the idea of heat transfers or heat transfer in the case of metals, because metals are the example of conductors. So, if they ask question about the metals in exam, because definitely they ask question in exam, like if we are talking about any saucepan, so definitely that is the category of metal. So in metal, we just simply explain the idea. In metals, free electrons also carry heat directly from hot end to the cold end. So free electrons also transfers thermal energy from the hot end to the cold end, and they also strike with the metal atoms along the way. And transfer their energy to them. So now you can see energy is going to be transferred from two different materials. Like one is the free electron and the second one is the molecules. So molecules are already transferring thermal energy, but now we have another source which is called free electrons. So they are also helping us to transfer thermal energy from hot end to the cold end. So in this way, now we have two sources of transfer of thermal energy in metals. So that's why the heat of, the transfer of thermal energy is going to be faster in metals as compared to the normal conduction process, right? Sir, Yes.
ये जो हमने अभी लिखा है इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हम कहाँ लिख सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। यही जो हम हम्म। यही जो अभी हम लिख रहे हैं, जी जी। अच्छा, ये बेसिकली हम कहाँ लिख सकते हैं? जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना रिलेटेड टू द मेटल्स, राइट, या कोई ऐसी एग्जांपल हो रिलेटेड टू लाइक एनी सॉस पैन, फ्राई पैन और एनी कंटेनर दैट इज मेटल, राइट। सो अगर वो उसमें आपसे पूछें कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो कभी कभार वो क्वेश्चन यस। ऐसे देते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सॉस पैन एंड दे मेंशन इन द क्वेश्चन दैट हीट इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, राइट। लेकिन वो उसमें एक चीज और आपसे पूछेंगे कि इसमें एक चीज और आपको हेल्प आउट कर रही है हीट ट्रांसफर करने में, तो वो क्या चीज है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली वी आर थिंकिंग अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये मेटल है, और मेटल में जो हीट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से और ज्यादा फास्ट ट्रांसफर होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया जो है वो सिर्फ आप मेटल्स की एग्जांपल में लिखोगे, राइट। तो जहां भी यस। मेटल आपको क्वेश्चन में नजर आता है या आपको लगता है कि इसमें मेटल की बात हो रही है, वैसे वो क्लियरली मेंशन करते हैं क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हिंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बहुत मतलब उसको वो क्लोजली छुपाकर जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत क्लियरली पूछते हैं। तो उसमें जो है वो आप इजीली उसको एडअप कर सकते हो। ओके। सो इट हेल्प्स अप टू स्पीडिंग अप द रेट ऑफ कंडक्शन। एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो सर। No, sir. ओके। So basically, in metals, heat is going to be transferred with the help of free electrons plus with the help of the motion or the vibration of the molecules. And also, Sir, can I ask a question? hmm, Sir, the insulators में ऐसा क्यों ना होता है? Insulators में time क्यों लगता है ज़्यादा? basically Heat. हाँ, इंसुलेटर्स का प्रॉब्लम ये है कि उसमें मॉलिक्यूल्स तो वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अराउंड सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं। ठीक है, जिस तरह सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ वाइब्रेट कर पा रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पे। तो वो ट्रांसफर उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से कंडक्टर में फ्रीली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मतलब आप जैसे स्कूल में एक असेंबली लाइन की एग्जांपल लो, तो सब अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होकर अगर एक पिलो ट्रांसफर करें, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप एक ही पोजीशन पे खड़े होकर बस ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में आप एग्जांपल लो कि एक स्टूडेंट जो है वो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ भागते हुए वो पिलो ट्रांसफर करे। ठीक है, तो डेफिनेटली वो तेजी से ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि बस मुझे अकेले ट्रांसफर करना है, तो वो इजीली उसको ट्रांसफर कर देगा। तो कंडक्टर्स में यही होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, तो वो इजीली एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुंचा देते हैं। और इंसुलेटर्स में ना वेट, बेसिकली वेट कर रहे होते हैं कि पहला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके जब मुझसे कोलाइड करेगा तो तब मुझे एनर्जी मिलेगी, फिर मैं आगे ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि वो खुद तो मूव नहीं कर पा रहे फ्रीली। इस वजह से इंसुलेटर में ये तो ट्रांसफर का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, और मेटल्स में बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसमें एक तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे और उसके साथ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो अब दो चीजें वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो डबल हीट ट्रांसफर का रेट आपको मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स और नॉर्मल कंडक्शन प्रोसेस। तो इसलिए मेटल्स में जो है वो कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों हाई होती है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। okay, sir, I got it. सेकेंडली,
If we talk about the conduction in solid, liquid, and gases, so definitely it is very simple to identify that the conduction process will be faster in solid, slower in liquid as compared to solid, and the process of conduction is the slowest in the gaseous state. So it helps you to identify rate of heat transfer to conduction decreases. So basically, if we are moving from solid to gas, so it means the rate of uh, transfer through conduction is decreasing. It will be greatest in solid, then medium in liquid, and slowest in the gaseous state. So because in gaseous state molecules are very far away, so definitely it takes time to transfer energy from one molecule to other one. In solid, molecules are tightly packed, so it will be easy to transfer thermal energy from one end to the other end. Okay.